our esteemed senior, the former president of Anima, the Aviation Club, a fourth year CSE student who is also an inspiring solopreneur working passionately towards revolutionizing the drone industry and with innovative ideas and determination. A very good evening, Bhaiya. Hope you are doing well. We have seen that you have participated in many robotics competition and have won many. So we would like to ask you some questions. Here's the first one. How did your journey into the drone making begin, and what inspired you to explore this field? So I started the drone journey in my class 7th. So I just like a normal guy watching YouTube videos and see drone, a very inspiring thing. Like in 2016-17, I just put like my father got a phone and I started watching YouTube. So one day I see on YouTube like someone is building a drone. So I also thought I can also build a drone. I told my father like I need to build a drone. So my father told it's too expensive and you are building on the basis of YouTube only. So you have no resources or other things. So then after I told my father I just given the links to all the parts like Amazon links. Then my father started slowly collecting all the parts. Like my father lived at Lucknow and I'm living at my home village. So he started collecting all the parts there. And when he come, like he's an army man. So when he come in to my village, he bring all the parts and given to me. So I'm just too much happy, like got all the parts, that thing, and I started making my drone. And what I'm saying is, watched on YouTube everything, and I made completely, and I plugged the battery, and the drone didn't work. And my father told me, "You wasted all the money," but told me, "Okay, no worries, it will work." Then I started searching everywhere. Then nowhere to find. Like YouTube guys are, mm, they are just bullshit. They show like connect this and connect this, you will have a drone, but it won't work like that. So I started viewing videos of watching videos of some big YouTubers like Joseph Bardwell is there on YouTube, who has a whole playlist of drones, how drones work, how motors work, everything in deep. Not like connect this wire here and it will work. Not like that. But it was a very deep knowledge for me, and I started watching those videos. And after that, I bought a new flight controller. As in my old drone, the problem was only flight controller. So I bought new flight controller, and after replacing with that, now I have option like I have a new flight controller, so no worries if the old one will damaged or not. So I started working on old flight controller and I repaired it. Like with my basic knowledge, I repaired it uh, only from YouTube. Okay, but Achievement. Big yeah, achievement, yeah. big achievement. Like both of the flight Yeah, controllers. you were very small to know the fault, still you repaired it. Yeah. Mhm. So I repaired all the electronics in that flight controller, and the mistake was in that flight controller is it was like a clone flight controller. So it has a voltage regulator, something like that thing, and I had to figure it out by all alone, like no multimeter, nothing else. But I had to made a multimeter also. Fine. You made a So multimeter. yeah, so my journey Wow. started like that only. In 8th, ninth class, I am hustling to complete the drone, and then I first I flew the drone, and It I was, was if it was 2016 or 17, how did you came across this word drone? मतलब उस टाइम पे तो इतना नॉलेज था ही नहीं बिल्कुल भी no, और एट there's नाइन्थ में थे आप like there's a knowledge. After that, I like one of my teacher is there. He's uh, founder of Hoop Masters India. So he is in the drones from around 2006. ओके So you can't say like the word drone is not there. The word drone is there, but like we are not able to reach to the part like there were not yeah, much awareness about it. yeah, not and the material is there, but we haven't reached there. Yeah. Like it's available everywhere, but not like today. Today it's very easy to access. And at that Yeah. time you need to search very hard to find all the correct things.
after that, what inspired me to explore this field is I also explored other robotic field also, but specialized this drone field. So whenever I had taken car robots and other things, and one drone, everyone will interest in seeing that drone only, not in car and other things. So like people happy to see drones. So I started like inspired me like to develop drones and other things only. So that's the reason I just chosen this field. भैया आपने तो क्लास 6 और 8 में ही वो सब कर दिया जो सेकेंड ईयर के बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, हाँ, मतलब आपने खुद से रिपेयर किया एंड थिंकिंग अब अबाउट द जैसे फॉल्ट, कि वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सुहाना से मतलब मैंने पूछा, एक मिनट, सुहाना से मैंने पूछा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। तो इसने बोला कि इंस्ट्रूमेंटेशन का हमें फोर्थ ईयर में पढ़ाएंगे। मैंने कभी वेट नहीं किया कि मेरे को सिलेबस में जब आएगा तभी मैं पढ़ूं, अगर मेरे को सीखना है तो अभी सीखो। वो वैसे करना होता है, हाँ, अगर वैसे करेंगे तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल। लेकिन तो मतलब अगर आपने ज्यादातर बच्चे होते हैं, जैसे अगर हमें ड्रोन बनाना होता है या मतलब फैसिनेटिंग तो लगता ही है, तो हम डायरेक्ट ऐसे देखते हैं कि कैसे किसको जोड़ना है और सब बना देते हैं। बट आप डेप्थ में गए, आपने सोचा कि कैसे क्या मैं भी कनेक्शन पहले करते हैं, वैसे ही पूरा था। इंटीरियर देखा। बहुत बड़ी बात है, मतलब ज्यादातर बच्चे सोचते नहीं है, और इस एज पे तो बिल्कुल नहीं सोचते थे। भैया आपको पता है सो अभी भी थैंक यू सेकेंड भैया। ईयर में बच्चे इस बात को कंफ्यूज लेके रहते हैं कि उनको डीएसए करना है या फिर कोर में जाना है। हाँ सबसे पहली चीज तो ये डीएसए क्यों जाना है, मतलब सीएस की जॉब क्यों खानी है? जब सीएस वाले कर रहे हैं तो फिर तुम लोग करके क्या मिलेगा? हाँ, माना कि हाई पेइंग जॉब है, लेकिन बाकी क्या फील्ड में क्या, मतलब इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है क्या? सब लोग उधर जाएंगे तो फिर इस तरफ कौन आएगा? अपने कॉलेज में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मेरे को रियली ईआई या फिर ईसीई से मिला हो, जो प्रॉपरली उस फील्ड में काम करता हो। बहुत सारे लोग जो कोर का बताते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ इसकी गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो खुद को कोर का बताते हैं, बट नॉलेज तो उनको भी नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। अब ये कॉलेज की प्रॉब्लम है या फिर उनकी खुद की, वो मुझे नहीं पता, बट मेरे को नहीं मिला कोई ऐसा। भैया ये हमारा एक्चुअली सोसाइटी है ना। अवेयरनेस नहीं होती उतनी। मतलब हाँ, ज्यादातर लोग जिस चीज को, ऐसे पीयर प्रेशर भी होता है, और एक ही चीज को अगर आप प्रमोट करते जाओगे तो भीड़ वही होता है, रैट रेस ही हो जाता है। नॉलेज भी नहीं होती है अगर कोर के बारे में ज्यादा, तो लोग उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, आईटी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। भैया बात ये है ना कि क्लास 10th के बाद क्या होता है ना कि बच्चों को क्या पता रहता है कि सिर्फ जेई करना है, जेई कर लेते हैं। अब उनको पता नहीं होता कि क्या करना होता है, तो जो रैंक आती है वो ले लेते हैं। अब उसके बाद घुस तो गए बट पता नहीं है ब्रांच के बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद फिर क्या है कि जो सब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, डीएसए कर रहे हैं, चलो हम भी डीएसए करते हैं। ये सीन चलता है। बात कुछ ऐसी थी, मैं अपने जेई के टाइम पे था, तो मैं बताता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे को ये नहीं पता था कि आईटी क्या होता है और बीटेक क्या होता है, और लिटरली मैंने एडवांस क्लियर किया था, और मेरे को ये नहीं पता था कि आईटी और बीटेक अलग होते हैं। तो क्योंकि मैंने वो कभी इंटरेस्ट से देखा नहीं, कोई बोलता था मैं आईटी कर रहा हूँ तो मेरे को लगता पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है, बट वो कोचिंग कर रहा होता था, ठीक है। और उसके बाद लाइक आई गोट 7,400 समथिंग रैंक, जनरल रैंक, बट मैंने काउंसलिंग खराब की तो मेरे को कुछ नहीं मिला उस जोधा के अंदर। देन मैं सीसेट के अंदर अप्लाई किया, और उसमें मैंने आईआईटी और एनआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी में फर्क नहीं पता था, तो मैंने ट्रिपल आईटी टॉप पे भर रखी थी और मेरे को मिल गई थी। भैया आपने फिर कोर मैंने ब्रांच के लिए क्यों नहीं डाला फिर, मतलब सीएसई क्यों चुना? बता ये भी रीजन बता रहा है कि मैंने सीएस को चूज किया, क्योंकि मेरे को मैकेनिकल का आता था नॉलेज पूरा, मैंने सब कुछ रीड कर रखा था, इलेक्ट्रॉनिक्स का आता था, और ये सिविल का आता था। बचा जो था वो कंप्यूटर साइंस था। सो आई थॉट कि आई विल चूज कंप्यूटर साइंस एंड कंप्लीट माय स्टडीज देयर, एंड आई हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका। कंप्यूटर साइंस में उतना नहीं नॉलेज ले पाया जितना बाकी सब्जेक्ट्स का ले पाया। मतलब आपको ब्रांच के बारे में जानना था इसलिए आपने लिया सीएसई? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ही यूनिक। ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा, मतलब 4 साल से भी एक ब्रांच को जानने के लिए लिया। अभी भी मैंने हाँ, बहुत क्योंकि मेरे को सारे सीएस का नहीं आता था। हाँ, अभी भी मैंने बहुत सारे सीएस बच्चों से बात किया, तो सब यही बोलते हैं कि अच्छी रैंक आई, घर वालों ने बोला ले लो तो ले लिया। बात नहीं है, लेकिन मेरे जोसा में अच्छी आईडी मिल जाती, बट बात वही थी कि मैंने काउंसलिंग खराब की। मेरे मेरे को किसी ने बोला 3,000 रुपीज एंड आई विल डू द काउंसलिंग, मैं बोला नहीं, मैं खुद से कर लूंगा।
दैट्स फाइन। आप उसके बाद मैंने ड्रोपलिन का भी नहीं सोचा, मैं जब कौन फिर से 1 साल वेस्ट करेगा, पता नहीं मैं 1 साल में कुछ चेंज ला दूँ फ्यूचर में, तो आई जस्ट So now you are happy where you are and या what you लाइक have achieved. मेरे दिमाग में एक चीज थी कि कॉलेज डजंट मेक एनी डिफरेंस। लाइक अगर तुम आईआईटी में जाओगे तो तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी, एनआईटी में जाओगे तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और ट्रिपल आईटी में जाओगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ चीजें और भी होती है, जैसे रिसोर्सेज वगैरह, क्या तुम बिना रिसोर्सेज काम कर सकते हो? जैसे अपने कॉलेज में है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा नहीं बोला कि रिसोर्सेज नहीं है बट लिमिटेड है, लेकिन आईआईटीज वगैरह में सब इजीली मिल जाते हैं रिसोर्सेज। तो बस वही है, अगर तुम आईआईटीज में जाते हो तो तुम्हें रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो तुम्हारे पास एक पाथवे बना रहता है जिस पर तुम्हें चल के जाना होता है, लेकिन इनमें तुम्हें पाथवे निकालना पड़ता है। पर वही बात है ना, जहाँ पे तुम ज्यादा पाथवे निकालोगे वहां पे तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, तो बस वही, और ज्यादा नए रास्ते भी खुलेंगे। हाँ बस टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, बट आप तो एक्सप्लोर कर ही रहे थे, अच्छा ही है। Yeah, second question, what innovations or unique features have you implemented in your drone that you have particularly proud of? बताता, इसका ही बताता। जैसे मैं 12th पूरी की, मैं फर्स्ट ईयर में आया, तो फर्स्ट ईयर में आते ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्या मेरे पास थोड़े पैसे थे तो मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पास एक ट्रांसमीटर था जो अभी मैंने रख रखा है एनिमा क्लब में एकदम सजा के, क्योंकि वो बेस्ट इनोवेशन है मेरा। तो वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की तरह डाला था मैंने, तो उसका नाम है ELRS, एक्सप्रेस LRS लॉन्ग रेंज सिस्टम। तो यहाँ की अगर मैं उस ट्रांसमीटर की रेंज बताऊं तो वो थी 500 मीटर। मतलब 500 मीटर के आगे जाते ही अगर बीच में कोई पेड़ भी आ गया तो उसकी रेंज कट आउट हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने कुछ मतलब डिजाइन किए, इलेक्ट्रॉनिक काम किया थोड़ा सा, हल्का फुल्का ज्यादा नहीं, और हल्का फुल्का ही कोडिंग वाला पार्ट किया। तो फर्स्ट ईयर में आके, और उसके बाद मैंने एक सिस्टम बनाया, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत रोबस्ट सिस्टम था, लेकिन उसकी रेंज 50 किलोमीटर थी उस टाइम पे, और अभी तो काफी ज्यादा है। 50 किलोमीटर, हाँ, हाँ तो बहुत ज्यादा, 500 हाँ, मतलब 500 मीटर 500 से मीटर से 50। 50 5 किलोमीटर। और बस उसमें कुछ चीजें थी जो मतलब फिर सही करनी थी उस टाइम पे, लेकिन अब तो सब कुछ सही है, अब बेस्ट है वो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो चीजें सही मेरे को मतलब चैलेंजेस फील हुए, वो ये थे कि सबसे पहले तो मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं अच्छे अच्छे सेमीकंडक्टर्स वगैरह खरीद के और लगा सकूं। और जो दूसरा था वो था कि लिमिटेड नॉलेज। तो बस वही। सो अभी मतलब आप तो नॉलेज के लिए क्या करते हैं, वही यूट्यूब ही सर्च करते हैं? नहीं, अभी मैं थोड़ा बुक्स वगैरह रीड करता हूँ और थोड़ा बहुत यूट्यूब, यूट्यूब से कम, लेकिन मैं पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। लाइक ब्लॉग्स वगैरह पढ़ लेता हूँ, या फिर अपना रेडिट रहा जिसपे अच्छा खासा डिस्कशन करके हम किसी भी चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। भैया तो आपने और कभी जर्नल वर्नल या फिर रिव्यू पेपर पढ़ा? हाँ, पेपर्स में बहुत पढ़ता हूँ, लिखा नहीं उसका भी, क्या है कि मेरे को लगता है पेपर वही लिखते हैं जो टाइम पास करते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, ये बात काट देना प्लीज। ठीक है। ठीक है, हाँ, यूनिक इनोवेशंस में और बताऊं तो जैसे कि फर्स्ट तो मेरा बेस्ट यूनिक इनोवेशन यही था कि मैंने रेंज को बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया था। हम्म, बस वही, और फिर इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की। मैंने इसको ओपन सोर्स बनाया, और फिर इसमें मैंने जो लोग थे उनका नाम मेरे को नहीं पता है, उनका उनका नाम एक का मैथ123 है, ये मतलब ऑनलाइन नेम था गिटहब पे, तो वही, और डिस्कॉर्ड पे भी उसी नाम से बात होती थी। तो उन लोगों ने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया और ये बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक अभी हर ट्रांसमीटर में आता है। ये तो बहुत बड़ा ही अचीवमेंट है, मतलब 500 मीटर से 50 किलोमीटर बनाना बहुत सही है। हाँ, अभी उसकी रेंज 500 प्लस किलोमीटर है। ओके, हाँ, सो और हाँ, प्रोसीड करें। हाँ बिल्कुल, ये तो एक हाउ डू यू ही सी द हाँ, हाउ डू यू सी द फ्यूचर? How do you see the future of drone technology, especially in India? What are the most exciting developments happening in this space? लाइक फ्यूचर ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जी। Yeah. फ्यूचर तो लाइक ड्रोन्स का मार्केट काफी बड़ा होने वाला है। अगर हम देखें तो कार्ड्स वगैरह सब कुछ पीछे रह जाएंगे, कि ये एक अगर सही से अभी देखें तो कि ये हर चीज को पीछे छोड़ देगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो एक ही है, बैटरी प्रॉब्लम।
अगर इसका सोल्यूशन हो जाता है तो फिर ये हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पीछे कर देगा, क्योंकि कितना ईज है इसमें, नो ट्रैफिक, ये हमें अभी लग रहा है। बट अगर एयर के अंदर ही बहुत ज्यादा, हाँ ट्रैफिक तो भैया अब बढ़ जाएगा ना, ऐसे न्यूज में भी आ नहीं, रहे थे कि हाँ सैटेलाइट्स ट्रैफिक पे। बढ़ जाएगा, लेकिन वो डिफरेंट लेवल्स पे होगा ना। अभी एक रोड पे इतनी गाड़ियां होती हैं और वहां पे सिर्फ अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे मेंटेन होंगी ना, एक्चुअली में अभी हम लोग लाइक 2D पे चल रहे हैं हाईवेज पे। अब जब जैसे ही हमारे पास ड्रोन्स आएंगे तो हम लोग 3D पे जा सकते हैं। तो हर बिल्कुल। इतने दूरी पे हम लोग बहुत सारे कर सकते हैं कि एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया। हाँ, और ये लेवल्स उनके एयरक्राफ्ट में पहले से लॉक्ड रहेंगे कि इस लेवल के बाहर वो नहीं जाएंगे, ऐसा वाला। मतलब जैसे कि अपन रोड पे लोग रहते हैं कि अपन डिवाइडर पार करके नहीं जा सकते, हाँ बिल्कुल वैसे। तो ये फ्यूचर का है, लेकिन पहला फ्यूचर तो ऐसे देखता हूँ कि ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को बहुत इजीली चेंज कर सकता है इंडिया के अंदर। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज आ रहा है, वो एक ही है, बैटरी चैलेंज। लाइक इसकी बैटरी बहुत कम चलती है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज आता है। दूसरा है मेंटेनेंस, कि जैसे कि अगर कुछ हल्के फुल्के पत्थर वत्थर भी आके मोटर में फंस जाए तो वो फिर नहीं चलेगा, ठीक है, या फिर प्रोपेलर डैमेज हो गए तो वो नहीं चलेगा। बस ये, और बाकी तो वो, तो भैया हम लोग प्रोपेलर को बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी मैंने रिसेंट में एक डिजाइन किया था, तो वो कुछ ऐसा ही था कि, हाँ बिल्कुल, ड्रोन से होकर, तो उसी चीज को लेके है कि हम पूरे ड्रोन को बचा सके। अगर वो गिरता भी है तो वो टूटेगा नहीं, मतलब वो बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, उसकी फ्लेक्सिबल, और वो स्ट्रॉन्ग भी होगा। वो फोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे वो फ्रेम के अंदर, जैसे ट्रस काम करता है, तो बिल्कुल वैसे। तो भैया जो आप वैसा ही लोग कुछ। भैया वो किसी हार्ड चीज से टकरा के टूटेगा नहीं फिर उसका नहीं नहीं, स्ट्रक्चर? बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, जैसे टकराएगा तो वैसे वो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरे फ्रेम के अंदर, और वो उसको खुद थोड़ा सा इलास्टिक भी होगा तो वो झेल भी लेगा उसको, और बाकी सब कुछ हाँ, ठीक वैसे है। हमने देखा था कि मतलब आप लोग मतलब ड्रोन शो कर रहे थे जब सॉकर बॉल में ही, तब देखा था कि काफी स्पीड भी घूम रहा था, गिर रहा था तो हम्म, कुछ नहीं हो रहा था। बट वही है कि अगर स्पीड से जाए और किसी चीज से टकराए तो नहीं, अगर टूटा तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, और भैया जो भैया फ्रेम, आपने मतलब अभी वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, उसके बारे हाँ में हाँ कुछ बताएंगे? आप जीते भी थे, का एक्सपीरियंस और भैया उससे कैसा पहले था एक कंपटीशन चीज वहाँ और, पे? एक और चीज उससे पहले, ठीक है। एक हाँ। भैया जो फ्रेम बनाते हैं आप लोग ड्रोन्स का, हम्म, वो किस मटेरियल का यूज करते हैं? लाइक हम मोस्टली मोस्टली ऐसा होता है कि हम कार्बन फाइबर यूज करते हैं, और उसके अलावा हम 3D प्रिंटेड मटेरियल्स यूज करते हैं। तो उसमें TPU हो गया, अपना PETG हो गया, और या फिर PLA हो गया, ये मेनली कॉमन मटेरियल्स होते हैं। लेकिन अभी हमारे हमारे पास जैसे जैसे हम कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम मटेरियल्स में भी रिसर्च का एक सेक्शन खोल रहे हैं, तो उसमें हम खुद के मटेरियल्स डिजाइन करने वाले हैं। R&D जैसे कि कर मेरे रहे पास हैं? यहाँ पे कुछ मटेरियल रखा भी है, अभी काफी फ्लेक्सिबल है, वाह। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे तो ये थोड़ा रोबस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा मटेरियल वो काफी हार्ड है, तो इन दोनों के बीच का चाहिए हमें, तो वो हमें खुद से बनाना पड़ेगा। बस यही मटेरियल्स वगैरह यूज करते हैं, बाकी मेन फ्रेम पे कार्बन फाइबर। भैया वो रोबोटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। हाँ, तो रोबोटिक चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि पहली बार अपने कॉलेज से हम लोग गए थे इतनी बड़ी चैंपियनशिप में, वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप में, और कॉलेज की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना पैसा मिला, ना ट्रेवल अलाउंस भी नहीं मिला, ठीक है। और इसमें हम लोग खुद के पैसे से गए थे, और फिर हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग सब कुछ निकाल रहे थे, लेकिन फिर उन लोगों ने प्राइज मनी कम कर दिया, पता नहीं क्यों। और मतलब पहले 1 लाख था तो उसको 40,000 कर दिया, तो इससे हमें थोड़ा धक्का लगा। पर हम लोग कंपटीशन करने ट्रेन में बैठे थे, तो हम ट्रेन से उतर के वापस आ नहीं सकते थे, तो हम सोचे अब जाके आते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पहुंचे, और फिर हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले वहाँ, जैसे कि कुछ इंटरनेशनल पायलट्स भी मिले, और बहुत ऐसे लोग भी मिले जो हमारी टेक को हमसे खरीदना चाह रहे थे, मतलब हमारी टेक में इंटरेस्टेड थे, जैसे ड्रोन सोकर हो गया इसमें। और सेकंड चीज, हमारे पास एक ड्रोन, हम 2 कंपटीशन पार्टिसिपेट किए थे, हाँ टोटल 3 में, सॉरी। हाँ, तो पहला था RC प्लेन का। तो RC प्लेन में हम अच्छा प्लेन उड़ाए थे, लेकिन बात वही थी कि पॉइंट्स कम थे। कुछ लोग वहाँ इंटरनेशनल आए थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी पार्शलिटी चलती है, तो उन लोगों ने उनको सपोर्ट दिया, बट वो चलता है, ठीक है, हम लोगों ने जैसा उड़ान था वैसा उड़ाया।
सेकंड जो था वो था ड्रोन रेस्क्यू। तो उसमें कुछ होता है ऐसा है कि अपना ड्रोन होता है और कुछ हर्डल्स होते हैं और एक जगह आग लगी रहती है, तो वहां अपने ड्रोन को जाना होता है, वहां से डेड बॉडी या फिर लाइव बॉडी जो भी है वहां एक बॉक्स रखा रहता है, बॉडी बता के तो उसको उठाना होता है और उसको उठा के फिर वापस उन हर्डल्स के थ्रू लेके आना होता है। तो वैसा एक चैलेंज होता है, तो उसको बोलते हैं ड्रोन रेस्क्यू। तो उसके अंदर हम अपना ड्रोन लेके गए थे और बाकी सबके ड्रोन को देखते हुए और अपने ड्रोन को देखते हुए साफ साफ दिख रहा था कि फर्क कहाँ है, मतलब टेक में फर्क कहाँ है। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं तुम लोग फोटो शेयर करूंगा, तुम लोग देखना कि अपना जो ड्रोन था वो एक सिंगल फ्रेम था और एकदम ऐसे यूनिक डिजाइन था। मीन एकदम क्लीन डिजाइन, ऐसा लग रहा था सब पूछे थे खरीद के लाए होगे, ठीक है। और बाकी सबके जो डिजाइन थे वो थे रंग बिरंगे कलरफुल ऐसे डिजाइन। तो वो मतलब जो होते हैं ना, अपन फ्रेम खरीद लिए रोबो वगैरह से या फिर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट वहां से फ्रेम्स खरीद लिए, उसके बाद उनको असेंबल करके लेके आ गए। वैसे वाले ड्रोन से सारे, लेकिन हम लोग पूरा काट के लेके गए थे, मतलब पहले डिजाइन किया था फिर कार्बन फाइबर से कटवा के फिर प्रॉपर्ली लेके आए थे। तो बस, तो अपना अलग यूनिक था। और जजेस भी ऐसे थे कि भाई क्या लेके आए हैं लोग, और उसमें हमें उम्मीद नहीं थी, बता देख के बिना डिसाइड हो गया होगा। हाँ। तो फिर हमने उड़ाना स्टार्ट किया था। अब वहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ था चैलेंज के अंदर, जैसा ऑनलाइन था उस वैसा नहीं था। चैलेंज में थोड़े से चेंजेस के कारण जजेस को भी नहीं पता था कि टाइम के ऊपर है या फिर कितने बॉडीज लूप्स के थ्रू निकाला उसके ऊपर है। तो कुछ भी क्लियरली बताया नहीं गया था। तो हमने अपना पूरा किया और उन लोगों ने हमें बताया कि तुम्हारा 3 मिनट 10 सेकेंड आया। बल्कि मेरे को दिखा रहा था 2 मिनट 53 सेकेंड, बट उन लोगों ने बोला 3 मिनट 10 सेकेंड आया, मतलब टोटल बॉडीज को उठा के लाना और सब कुछ। तो मैं बोला ठीक है। और उसके बाद हमें उससे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमें एक ही चीज पे भरोसा था कि हम ड्रोन सॉकर में जीतेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे ड्रोन सॉकर का मैच था। अब उसी दिन फाइनल्स थे, मतलब हर चीज का फाइनल्स। तो ड्रोन सॉकर का मैच स्टार्ट हुआ और कुछ टीम्स के मैचेस, एक चीज बताऊं, वहां पे इतने सारे गेम्स हुए, उसमें किसी में इतनी ऑडियंस नहीं है जितनी ड्रोन सॉकर को देखने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा था, ठीक है। और हर कोई ऐसे कूद रहा है इधर उधर से, गिर गिर के पड़ रहे लोग और देख रहे कि कैसे उड़ता है, कैसे क्या होता है। और हमने जो बाहर की कंट्रीज के लोग थे उनको उड़गंदा मारा, ड्रोन पिचका दिए। वो लोग गेम खत्म होने से पहले अपने ड्रोन लेके निकल गए कि नहीं, रोने लग गए थे कुछ बच्चे भी ऐसे लोग, ठीक है। मैं नहीं चाहता था ऐसा करूं, लेकिन वो लोग खुद आए थे, हमने उनको मना किया कि अगर तुम्हारे पास ड्रोन सही नहीं है, रेडी नहीं है तो मत आओ। पर वो लोग बोल रहे कि नहीं हम लोग तो आएंगे, ठीक है। तो फिर बोला ठीक है। फिर अपने ड्रोन एकदम रोबस्ट थे, कितने भी टकराए कितने भी गिरे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ऐसा ही चल रहा था। फिर एक टीम थी फाइनल्स के अंदर, एक टीम थी अच्छी टीम थी, वो इंडिया से ही थी, लेकिन उन लोगों के ड्रोन्स भी ऐसे थे, डिजाइन अच्छे से नहीं बनाया हुआ, सिंगल बॉडी डिजाइन था। लाइक एक सेमी सर्किल बना लिया, डिजाइन कर लिया 3D प्रिंट, और उस पूरे 2 सेमी सर्किल को चिपका के फिर डिजाइन बना दिया। लेकिन हमारा जो डिजाइन था वो ऐसा था कि हर चीज ऐसे जोड़ जोड़ के बनाई हुई, मतलब एकदम स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो जो फोर्स था वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब उनका पूरा हेमिस्फीयर था, तो फोर्स लग रहा है तो पूरा हेमिस्फीयर ही टूट जा रहा है, और ऐसा करके उनके हेमिस्फीयर भी तोड़ दिए। तो स्कोर आपने सब स्कोर तबाह कुछ कर है, दिया मतलब सब। स्कोर कुछ ऐसा था 7 या 9, 9/36 34 के अराउंड। तो ये स्कोर था, और उनके ड्रोन भी तोड़ दिए जबरदस्ती स्कोर करने के बाद भी। हाँ। तो ये तो सब बस सुन के फिर तो लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ही अच्छा रहा होगा। हाँ। मतलब और तबाह फिर करके आ गए आप दूसरों के नहीं नहीं, ड्रोन अभी को। अभी दिन खत्म नहीं हुआ था। फिर प्राइज मनी की, मतलब वो प्राइजेस की बात स्टार्ट हुई, तो उन लोगों ने प्राइजेस देना स्टार्ट किए। फिर किसी ने, हम लोग खड़े थे, हमारी टीम खड़ी थी, तो कोई आके बोलता है कि तुम्हारा नाम कोई ले रहा है। तो हम बोले ऐसे कैसे ले रहा है, अभी तो ड्रोन वगैरह का स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो हमें पता लगता है कि हम लोग ड्रोन रेस्क्यू में भी थर्ड पोजीशन पे आ गए। तो हाँ, पर ठीक है आपके उसमें साथ हम, कोई मेंटर गए थे कि आप ही लोग बस गए थे स्टूडेंट्स? नहीं कोई जब कॉलेज की तरफ से गए ही नहीं तो फिर मेंटर कहाँ से आएगा, क्योंकि कॉलेज ने कोई सपोर्ट ही नहीं किया। फाइल भी पास नहीं की, 2 बार फाइल रिटर्न कर दी, कैसा कैसा, बस वही फिर डिसअपॉइंट आपके किया। जीतने के बाद कोई कॉलेज का कुछ रिएक्शन? हाँ, रहा ना रिएक्शन, फोटोज खिंचवा लिए कॉलेज ने और पोस्ट कर दिए सब जगह, लेकिन फाइल्स की मैं कोई बात सुना नहीं। कि आप लोग को जो ट्रैवल अलाउंस थे वो मिले बाद में।
रिमबर्स्ड हुआ? कुछ भी नहीं मिला, नथिंग, नॉट ए सिंगल पेनी। यही होता है ना जब आप एक अच्छे आईआईटीज में जाते हो और किसी एक तो वहाँ लोग तुम्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। वहाँ मेरे दोस्त लोग आते हैं आईटीज वगैरह से, वो बहुत अच्छी चीजें लेके आते हैं, तो मैं उनसे ले लेता हूँ कि भाई हमारे ऐसा नहीं होता है, थोड़ा इधर दे दो। तो ऐसा ऐसा करता हूँ मैं। लेकिन बात तो ये कि आईटीज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तुम्हें सपोर्ट मिलता है इन सब चीज़ों का। अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, अब तुम आईटी बॉम्बे में, मैं अभी भी रिसेंटली आईटी बॉम्बे में जाके आया, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ 3 क्लब है जो ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं। तो मैं उनको जाके पूछता हूँ, भाई तुम लोग 3 हो, अलग अलग काम कर रहे हो, साथ मिलके क्यों नहीं कर रहे? तो बोल रहा है कि एक वीटीओल पे काम कर रहा है, वो डिलीवरी वगैरह करने के लिए। हम जिस पे काम कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन। तीसरे के पास गया तो वो बोलता है कि हम सिर्फ ड्रोन पे काम कर रहे हैं, मतलब रेसिंग ड्रोन्स वगैरह इन ड्रोन्स पे। तो ऐसे उन लोगों ने 3 विंग्स बना रखे ड्रोन क्लब्स की। बात वहीं पे आ और जाती है ना भैया, उनके शार्प माइंड्स की। वहाँ पे इंडिया के टॉप माइंड्स जा रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेस इतनी अच्छी है, तो ऑब्वियसली जो उनका लेकिन वो आउटपुट होने वाला है वो बेस्ट ही होगा। नहीं, वो इतना नहीं 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 नहीं, मैं बोलता, मैं खुद उनको बोल के आया, तुम्हारा आउटपुट अप टू द मार्क नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने लिटरली ऐसा रख रखा कि ड्रोन के ऊपर एक प्लेन बना के रख रखा। मैं बोल रहा भाई उड़ता भी है, तो बोल रहा हाँ उड़ता है। फिर उसने एक वीडियो दिखाया मेरे को कि इसमें ड्रोन तो उड़ रहा था, लेकिन जिस टाइम प्लेन की बारी थी तो बोला कि वो वीडियो बनाया नहीं हमने। तो और उड़ा के मैं नहीं उनको दिखा। हाँ, मैं उनको साफ साफ बोल दिया कि तुम लोग एक्सपेक्टेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो वही एक मैंने बार जो होता एक्सपेक्ट है किया था जिनके वो तो पास इमीडिएटली मिला। रिसोर्सेज होती है वो अच्छे से यूज नहीं कर पाते, तो जिनके पास नहीं बिल्कुल। होता है वो कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, ये चीज मैंने देखी है। जैसे कि एनिमा क्लब में पहले रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, तो सब लोग अच्छे से काम करते थे। अब मैंने एनिमा क्लब में लाइक रिमोट, लाइक 5 से 6 ड्रोन्स हैं और 4 से 6 रिमोट है। तो मतलब एक साथ 6 लोग सिमुलेटर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कोई काम नहीं करता है, कोई प्रैक्टिस करने नहीं आता है। मैं उनको बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन उनके पास अभी रिसोर्सेज है तो कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा मैंने देखा है। मतलब उनका इंटरेस्ट पता नहीं, पहले तो इंटरेस्ट होता है, जब रिसोर्सेज आ जाते हैं तो इंटरेस्ट नहीं रहता उन लोग को। आई फील भैया जब रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो उसी टाइम पे कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि जो सिर्फ इंटरेस्टेड लोग हैं ना वही आने चाहिए। हाँ, लेकिन सब तक न्यूज भी नहीं पहुंचता ना। जैसे कि हम कितना भी कुछ भी करवा ले, ओरिएंटेशन वगैरह करवाते हैं, 25 से 30 लोग आते हैं, मुश्किल से 60 लोग मान लो। तो ये कोई मतलब थोड़ी होता है। और दूसरी बात, अपनी कॉलेज किस चीज को प्रमोट कर रही है? अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा था सिनेमा हॉल, क्या चल रहा है? मतलब कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कल्चरल कॉलेज? हमको लग रहा है ऐसा कि जो हमारा कॉलेज है ना वो स्लाइटली टिल्टेड है कल्चरल प्रोग्राम्स को लेके। बीइंग अ हाँ कॉलेज तो ऑफ वो national importance, it should focus on technology innovation, but rather than it is focusing on cultural events. That is really sad part to see. या कि मतलब आजकल मेंटल अवेयरनेस के लिए भी शायद कर रहे हैं ऐसा थिएटर वाला काम। मैं बताता, ज्यादा मैं स्ट्रेस आईटी नहीं। खड़गपुर, एक मिनट, मैं आईटी खड़गपुर में जाता हूँ, तो वहाँ इस्कॉन आईटी खड़गपुर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वहाँ के कुछ बच्चे मतलब इस्कॉन सेंटर के अंदर ही रहते हैं और कॉलेज उनको अलाउ करता है। वो वहाँ पे काम करते हैं, उनका जिनका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा खराब होता है या फिर, और लिटरली लोग वहाँ पे जाते हैं और पूरे दिन वहीं पे रहते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं जो उनका होता है। और जो इस्कॉन के वहाँ के वो होते हैं, हेड होते हैं, वो उनकी पूरी हेल्प करते हैं कि टाइम टेबल अरेंज करने में। एज ए टीचर, जो कि वहाँ के वो गुरु हैं, वो हेल्प करते हैं उनकी कि कैसे तुम्हें टाइम टेबल फॉलो करना है, कैसे तुम्हें काम करना है, कौन सा कब, ये सब। वो देख के काफी अच्छा लगता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। आई एग्री विद भैया। और अभी जो कर रहे हैं यहाँ के मेंटल स्कॉल हेल्थ वाले में, आते हैं हाँ देखा मैंने, बट वो देखा। सिर्फ प्रसाद देके चले जाते हैं। हाँ, बस वही मतलब ऑडिटोरियम में सिर्फ पता नहीं क्या करते सीखते रहते हैं। नहीं है। वहां पे प्रॉपर 1-on-1 होता है, लाइक गुरु के साथ प्रॉपरली हम्म। बात करते हैं सब लोग। हाँ। भैया जैसे आपने अपनी जर्नी बताई और इतनी सारी इनसाइट्स बताए, मतलब ये सब अगर कोई जिसको इंटरेस्ट है एक्चुअल में ड्रोन्स में और एरोस्पेस वगैरह में, अगर वो जेन्युइनली आपकी बात सुने तो इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाएगा और मोटिवेट भी हो जाएंगे। मतलब आपकी बातें हैं ऐसे कि आपने बिना रिसोर्सेज के इतना कुछ अचीव किया, और मतलब जैसे आपने बताया कि आईटी बॉम्बे वाले उनके पास रिसोर्सेज है बट वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक आपके मतलब सेम से बहुत सारी लर्निंग्स है, तो जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है वो काम करेंगे ही।
मतलब जैसे अब आप 4th ईयर में आप चले जाएंगे, एनिमा को दीदी संभाल रही हैं, तो होपफुली वो अच्छा करेंगी, वो भी इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा। और बाकी लोग भी की बात सुनने के बाद वो और मोटिवेट हो जाएंगे, मतलब उनको भी पता है कि आपने इतनी मेहनत की है एनिमा में, आई तो होप। वो लोग भी करेंगे। तो भैया थैंक यू, मतलब इतना कुछ आपने दिया है हमारे कॉलेज को भी। इस बारे में मतलब हम बिल्कुल फोर्स डालेंगे फैकल्टीज पे कि ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है या कॉम्पिटिशन्स है, उसके लिए कॉलेज को हमें हेल्प करनी चाहिए। जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और कॉलेज को आगे ले जा सकते हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो करना ही चाहिए। मेरे को नहीं लगता, बट यू मस्ट ट्राई। आई एम विथ यस यू भैया। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप अपना एक द ओसिरस स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी, आपकी स्टार्टअप, तो वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट इट्स मिशन, द प्रॉब्लम इट एम्स टू सॉल्व एंड द प्रोग्रेस। ओके, सो मैं बताता हूँ। द ओसाइरस हमने जो स्टार्ट किया वो एक एंटिटी है, नॉट अ सिंगल कंपनी। मतलब वो अपने अंडर काफी कंपनीज को हेल्ड करती है, तो उसके अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बोल के स्टार्ट कर रहे हैं। तो द ओसाइरस के अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो है ड्रोन सोकर्स। अब ड्रोन सोकर्स एक अलग कंपनी बनाई है, तो वो फोकस कर रही है मेनली ड्रोन सोकर पे। तो ड्रोन सोकर क्या होता है, एक छोटा सा ड्रोन होता है जिससे जिसके बाहर एक केज लगा रहता है नॉर्मली। ठीक है, तो अगर तुम एक नॉर्मल ड्रोन खरीदते हो तो उसको तुम उड़ाते हो, 5-10 दिन उड़ाओगे, फिर तुम्हारा मन भर जाता है कि अब क्या ही उड़ाएंगे ड्रोन को, इंटरेस्ट है तुम्हारा। लेकिन ड्रोन सोकर में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्रोन सोकर एक स्पोर्ट्स की तरह खेला जा सकता है। मतलब 5 प्लेयर एक तरफ है और 5 प्लेयर एक तरफ है, तो टोटल 10 प्लेयर्स, तो एक साथ इंगेजमेंट 10 लोग का है। और साथ में इसमें गोल्स के थ्रू, मतलब जैसे फुटबॉल होता है वैसे ही 2 गोल पोस्ट होते हैं दोनों तरफ, और बाकी के 4 लोग हेल्प करते हैं, मतलब कि सामने वाला गोल ना करके जाए। अब एक ही बंदा गोल कर सकता है, एक ड्रोन अलग कलर या फिर लाइट में होता है, तो सिर्फ वही गोल कर सकता है, तो उसको स्ट्राइकर बोलते हैं। अब दोनों टीम में एक एक स्ट्राइकर होता है, तो उन दोनों को दोनों गोल पोस्ट से निकालना होता है, एक इधर से एक इधर से, और बाकी के 4 लोग उसको स्टॉप करते हैं। तो इसमें अगर कोई सीखना चाहे तो उसको क्या क्या सीखने मिलेगा। सबसे हमारा मेन फोकस वही है, सिखाने का। तो जो सबसे पहला है वो है कि कैसे हम ड्रोन को बनाते हैं। सबसे पहली चीज वो कैसे काम करता है। दूसरा कि कैसे ड्रोन उड़ाते हैं। तीसरा इसमें टीम वर्क बिल्डिंग होगा, और प्रॉपरली कि किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए टीम मेंबर्स के साथ। ऐसे बहुत सारे स्टेम लर्निंग पार्ट है इसके अंदर, जो फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम फोकस कर रहे हैं ये, लाइक 5th क्लास से 10th क्लास तक के बच्चों को एकदम लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकें ड्रोन सोकर्स। तो अभी हम देखें तो ड्रोन्स बहुत महंगे आते हैं, कुछ ज्यादा महंगे आते हैं। और अगर दूसरे ड्रोन देखें जो यूट्यूब ये अमेजोन पे मिलते हैं, तो ये 2 से 5 हजार के, ये बिल्कुल उड़ाएंगे फिर 5 दिन में मन भर जाता है, ऐसे वाले ड्रोन्स आते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो लाइक 15K, 10 to 15K के अंदर आए, और ऐसा है कि वो प्रॉपर रोबस्ट हो, ना तो टूटे, आप कितना भी मतलब इधर से उधर फेंको उसको नहीं टूटेगा। और हर स्कूल के पास प्रॉपर किट्स हो, लाइक हर स्कूल के पास लाइक 50 किट्स है। तो वहाँ पे जैसे कि अपना ब्रेक पीरियड होता है जिसमें फुटबॉल्स वगैरह खेले जाते हैं, तो वैसे ही एक पीरियड हो हर क्लास का जिसमें उनको ड्रोन्स के बारे में सिखाया जाए, रोबोटिक्स के बारे में सिखाया जाए, और फिर एक मैच भी हो, फ्रेंडली मैच, लाइक 5 मेंबर्स इधर 5 मेंबर्स इधर, और ऐसे प्रॉपर मैच हो। तो एक प्रॉपरली हर बच्चे को इंगेज करके और उनको सिखाया जा सकता है कि किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। तो जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे को बहुत सारे जानने की इच्छा रहती थी, मोटर्स कैसे काम करती है ये सब। तो उसका प्रॉपर रिसोर्स मिल जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए, तो फिर तुम्हें बहुत इजीली समझ में आती है थ्योरी पार्ट। तो द ओसाइरस के अंदर ड्रोन सोकर्स का यही काम है। फिर द ओसाइरस के अंदर जो सेकंड एंटिटी है वो है वायुमेड। अब इसका कुछ फोकस ऐसा था, वायुमेड, तो नाम से पता लग रहा है, वायु मीन्स एयर के थ्रू मेडिसिन डिलीवर करना। तो इसमें कुछ वीडियोस होंगे जो मेडिसिन डिलीवर करेंगे टू एयर। ठीक है, अब अपन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देख लेते हैं, जहाँ पे अगर अपन को कहीं पे टेरेन लाइक जगह है, वहाँ पे मेडिसिन चाहिए, तो वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हमने 2 मॉडल्स बनाए थे, लाइक वो 3D में ही रह चुके हैं, वो कभी रियलिटी में नहीं बन पाए, लेकिन वो बनेंगे। हमें उम्मीद है कि एक दिन हम बनाएंगे। तो वही है कि वो जल्दी रैपिडली डिलीवर कर सकते हैं मेडिसिन इन द होल नॉर्थ ईस्ट। जिस हिसाब से हमने चार्ट्स वगैरह बनाए थे,
प्रॉपर मतलब ऐसा था कि हर मेन सिटी में एक लैंडिंग पॉइंट था, जैसे कि गुवाहाटी हो गया, आसाम हो गया और अपना अगरतला हो गया। इन तीनों जगह से ही हम पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर कर पा रहे थे। ठीक है, तो कहीं पे भी किसी को कोई भी मेडिसिन वगैरह चाहिए तो एयर के अंदर पहले से ही अपना वीटीओल रहेगा और वो वहाँ पे जाएगा और मेडिसिन डिलीवर करके आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेगा। ऐसा करके हमने इसको स्टार्ट किया था। बट फिर कहीं से फंड ना मिलने के मतलब एप्रिसिएशन बहुत मिला, बट बात ये थी कि जो फंड देने वाले आते थे उनको फंड देने का परमिशन था, वो था एग्रीकल्चर। मतलब वो सेक्टर्स देके फंड्स देते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकंड डिफेंस था और मेडिसिन का कहीं पे नाम नहीं आता। पता नहीं कोई सपोर्ट नहीं करता मेडिसिन वगैरह को, बट उसका नाम कहीं पे नहीं आता। तो हमने इसको एक तरीके से होल्ड पे कर दिया। मतलब बहुत स्लोली काम कर रहे हैं बट काम कर रहे हैं, एकदम स्टॉप नहीं किया। तो सेकंड वाइब मेट था। और इसके अंदर दो ओसायरस में जो मेन ओसायरस के अंडर आता है वो डिफेंस पार्ट है। तो उसमें अलग अलग है, जैसे कि तुम लोग देख रहे होंगे कि आजकल यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रहा है। तो उसमें बहुत सारे ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। अब वो उनको जैम भी करते हैं और उनको गिरा भी देते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला जो हमारा फोकस हुआ ऐसा है, एंटी जेम ड्रोन, जिसको कोई जैम भी नहीं कर सकता, ऐसा वाला ड्रोन। तो पहला तो वो सेकंड पार्ट जो है वो है कि कामिकाजी ड्रोन्स जो एक बूम कैरी करते हैं और वो जाके पड़ते हैं, खुद को भी फोड़ लेते हैं सालों। ठीक है। और थर्ड जो है वो ग्रेनेड ड्रॉपर बॉम्ब, मतलब ड्रोन ग्रेनेड ड्रॉप करता है वो वैसा। और जो फोर्थ वो मशीन गन, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है बट अभी के लिए बस उसको ऐड कर रखा है लिस्ट में। तो इन पे काम कर रहे हैं। और बाकी सर्विलेंस के ड्रोन्स है, लाइक वो 8-8 घंटे तक एयरबोर्न रह सकते हैं, एयर के अंदर बहुत हाइट पे, लाइक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अबोव, एंड वो वहां से सर्विलेंस करते रहेंगे जहाँ का भी करना है। भैया आप भैया, have you ever thought of starting a YouTube channel like drones के बारे में ही? हाँ, like I started multiple times and still I have a YouTube channel, but the thing is like मैं कुछ बताना चाहूंगा, स्टार्ट करूंगा, फिर मतलब टाइम जाता है उसके अंदर, बहुत टाइम जाता है। तो पहली चीज तो एक मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता। और अभी मैंने सोचा था कि इस छुट्टी में मैं प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दूंगा। और अभी मतलब मैं सोच रहा था मीटिंग के बाद एक वीडियो बनाई दूँ 3D मॉडलिंग वगैरह पे, क्योंकि मेरे को वो भी लगता है कि अपनी कॉलेज में उसकी भी काफी कमी है। जिन लोग को हम लोग सिखा रहे हैं वही है 3D मॉडलिंग में, बाकी ऐसा कोई नहीं कि अपनी ब्रांच से सीख के आया हो प्रॉपरली। तो उसी का हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बार। भैया ब्रांच में तो सिखाया भी नहीं जाता। हाँ भाई, तो यूट्यूब चैनल तो है मेरा, बट इट्स नॉट लाइक फुली वर्किंग। भैया आप दो चीज़ें बोल रहे थे आपने स्टार्टअप के बारे में। एक तो बोल रहे थे कि 5 to 10 क्लास के बच्चों को ऐसा सिखाएंगे ड्रोन्स के बारे में, तो वो तो इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट का होगा। नहीं, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, हाँ उसके लिए जैसे अटल लैब्स है, तो अटल लैब्स के थ्रू हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। अगर हमें वहां से परमिशन नहीं मिलता है तो सेकंड ऐसा होगा कि हम खुद से कर देंगे स्टार्ट। अभी हमने ये कर भी दिए एक तरीके से स्टार्ट, कि डायरेक्टली स्कूल्स को अप्रोच करेंगे और फिर उनको डायरेक्टली सोल्ड करेंगे अपने किट्स वगैरह और प्रॉपर एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी जनवरी में। तुम लोग देखोगे कि केवी स्कूल है अपना, अपने साइड में ही है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं दूर जाने से अच्छा है पहले पास से स्टार्ट कर ले। पास से। और एक तो बात बोल रहे थे, लास्ट जो आपका ड्रोन था वो एयर में 4-5 घंटे रह रहा है। तो आप इनिशियली स्टार्ट किए थे, जो हमारा कन्वर्सेशन था ड्रोन का, उसमें बोल रहे थे कि जो बैटरी वाला प्रॉब्लम है वो आएगा। तो इसमें नहीं आ रहा है क्या बैटरी वाला प्रॉब्लम? बता दो, इसमें बैटरी नहीं है, उसमें इंजन है। वो हाइब्रिड ड्रोन है। तो उसमें एक इंजन रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जो बताता वो प्रॉपर वीटीओल है। वो ऐसा है कि वो कहीं से भी टेक ऑफ ले सकता है। अब उसमें जो 4 रोटर्स हैं साइड में लगे रहते हैं, या फिर 3 रोटर्स, हमारे पास दोनों हैं। तो 3 रोटर वाला लेके चलते हैं। 3 रोटर हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए थ्रस्ट देंगे। ठीक है। और एक मेन रोटर होगा जो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए थ्रस्ट देगा। जो इधर 3 रोटर है ये बैटरी पे चलते हैं, जो मेन रोटर है वो इंजन पे चलता है। ठीक है। बाकी पूरा कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। अभी जो मेन रोटर जो इंजन से चल रहा है, इससे जो इसके साथ एक जनरेटर कनेक्टेड है, जो काफी छोटे जनरेटर आते हैं वो कनेक्टेड है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है जो बाकी कंपोनेंट्स वगैरह को रन कर रही है। लेकिन वो डायरेक्टली उस जनरेटर पे भी वो नहीं है, वो जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी एक बैटरी से कनेक्टेड है। ऐसा हो कि इंजन बंद हो गया तो सब कुछ ही बंद हो गया।
ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो एक बैटरी है, वो चार्ज हो रही है बस जनरेटर से, और अल्टरनेट बैटरीज होती है कि ये वाली काम कर रही है तो ये वाली चार्ज हो रही होगी, और ये वाली काम कर रही है तो ये वाली चार्ज हो रही होगी, इस तरीके से काम करते हैं। तो उसमें वो इंजन जो है, उसके कारण वो 8 आवर्स तक एयरबोर्न है। बैटरी का काम उसका स्टार्टिंग के 10 मिनट्स और लैंडिंग के 10 मिनट्स में ही है बस, बाकी पूरा इंजन के ऊपर डिपेंडेंट है। भैया ये आइडिया कहाँ से आया? ये हाइब्रिड है, लाइक रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्यूचर स्कोप डाल के देते हैं। या तो अगर हम स्टडी काफी करेंगे तो फ्यूचरिस्टिक और काफी इनोवेटिव आइडिया है ये। भैया आपने इसको टेस्ट किया है, मतलब प्रैक्टिकली? बात वही है पैसे की। लाइक मैंने लाइक जो मैंने बताया वीडियोस में, उसमें प्रैक्टिकलिटी में मैंने अभी तक उनके मोटर्स वगैरह का टेस्ट किया है। इंजन मैंने अभी रिसेंटली खरीदने का सोचा था, बट बात वही थी कि वो इंजन लाइक आज से 20 साल पुराने वाली टेक पे था। मेरे को कुछ नए टेक के इंजन चाहिए थे, और मैंने उन लोगों को बोला भी कि आप हमें इंजन प्रोवाइड करो, और ऐसा हमारा स्टार्टअप्स वगैरह। तो बोले ठीक है हम देखते हैं। अभी तक उन लोगों से कोई रिप्लाई नहीं आया, बट अगर वो लोग प्रोवाइड करते हैं, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अभी खरीद लें, और ना ही हमें किधर से फंड्स मिले। अगर हमें फंड्स मिलते हैं, इसीलिए तो हमने दवोसरेस स्टार्ट किया। बात कुछ ऐसा है कि हम दवोसरेस में ड्रोन सॉकेट स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्ली, अभी फोकस हमारा ड्रोन सॉकेट्स पे। तो अगर हम एक बार एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर्ली प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास फंड्स होंगे कि हम रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकें दूसरे हमारे एंटिटीज पे। अब उन एंटिटीज पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो कोई फंड हमें दे नहीं रहा, लाइक मेडिकल वाले पे कोई फंड देने नहीं आता है। तो ऐसा होता है, तो इससे अच्छा है कि हम इसी पे स्टार्ट करें, ड्रोन सॉकेट्स पे। तो हमने इसको सबसे पहले फोकस में लिया है, और उसके बाद में बाकी के स्टार्ट करेंगे। समझ गए? Bhaiya, if you could start your journey with drones again, what would be the initial stages and how can a fresher come into this drone field? If you can give them advice and guidance. अगर वो अपने कॉलेज से है तो एनिमा क्लब ज्वाइन करे सबसे पहली बात, और अगर वो अपने कॉलेज से नहीं है तो वो एक अच्छे मतलब सोर्स को चूज करे जहाँ से वो पढ़ रहा है। लाइक अगर वो यूट्यूब से पढ़ रहा है तो सबसे बेस्ट रिसोर्स है जोसेफ बार्डवेल, एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है, ठीक है, जो बेस्ट है ड्रोन्स को एक्सप्लेन करने में। और अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स का जानना है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं, तो उसके लिए क्रिस रोसर है। और अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो फिर ऑस्कर लियांग करके ब्लॉगर है, वो ब्लॉग्स लिखता है, सेम है जोसेफ बार्डवेल। ये सारी चीजें हैं, ये काफी अच्छी हैं। इनके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बताते हैं। हिंदी वाले कभी भी मत देखना, हिंदी यूट्यूब चैनल्स रबीश कचरा होता है, सब डिलीट कर दो ऐसा वाला। हाँ, हिंदी वाले बस यही बताते हैं कि ये वायर यहाँ कनेक्ट करो, ये वायर यहाँ कनेक्ट करो। हमने भी भैया जब प्रोजेक्ट्स बनाए थे ना, मतलब हमारे यही में रहता ना कि हर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो हमने भी काफी सारे वीडियो देखे थे। तो जो इंडियन बताते हैं वो सिर्फ कनेक्शन बता रहे थे, क्या कैसे जुड़ेगा, रीजन कुछ भी नहीं बता रहे थे, बस कॉपी पेस्ट। और भैया आप काम कैसे कर रहे हो कोई बता। हाँ, आप उसके बारे में बोल रहे थे कि आप रेडिट पे भी बात करते थे, तो एनी स्पेसिफिक? हाँ, नहीं, रेडिट पे तो ऐसा है कि तुम लोग डिस्कशन स्टार्ट करोगे, लोग अपने आप आ जाएंगे। अगर तूने डाला कि ऐसा सा ड्रोन है और इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर लोग अपने आप जो वहाँ पे इंटरेस्टेड लोग ही आते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई आ गया। हाँ, जो इंटरेस्टेड होगा फटाक से तेरे को 10 मिनट के अंदर तेरे डिस्कशन पे स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। जैसे ही वो अकेला बंदा अगर झेल नहीं पा रहा है तो अपने दोस्तों को भी बुलाएगा, अपने फोरम से बुलाएगा कि एक बंदा है उसके ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है और हमें जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो प्रॉपर अच्छा कम्युनिटी है। आई वुड से रेडिट कम्युनिटी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू डिस्कॉर्ड और इधर जो भी कम्युनिटी। हाँ, डिस्कॉर्ड पे भी काफी कम्युनिटीज है, लेकिन इंडिया की भी एक कम्युनिटी है, उसका नाम है आरसी प्लेन करके। तो हाँ, इंडिया की भी कम्युनिटी है, पर वो ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहती, वो काफी ऑफलाइन है, बट वो काम करती है। उस पे मेंबर बनने के लिए भी तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे हर किसी को मेंबर भी नहीं बनाते हो। तो वही, बाकी अभी मैं बहुत अच्छे लोगों से मिलके, अभी मैं आईटी बॉम्बे गया तो वहां मैं हेलो वोकर से मिला। हेलो वोकर ये एक जर्मन है, लियोन्स नहीं बोला जाएगा नाम, लियोन नाम है उसका, ठीक है। जर्मन में कुछ अजीब तरीके से बोलते हैं, मतलब उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो वो बंदा काफी फास्ट ड्रोन उड़ाता है, वो इतना फास्ट उड़ा रहा था कि तुम लोगों को पता है ना सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग कैसे करते हैं? जी
तो सोल्डरिंग कितने टेम्परेचर पे होती है, 300 समथिंग डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे जो बैटरी लीड्स आते हैं, लाइक ड्रोन के बैटरी लीड्स अलग तरीके से सोल्डर होते हैं, वो काफी हाई टेम्परेचर पे सोल्डर होते हैं। अगर हम उन्हें नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन से रिमूव करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो उस बंदे ने क्या किया, वो ड्रोन उड़ा रहा था, वहां पे बहुत सारी लाइक पब्लिक आई हुई थी, तो वो उनको उड़ा के दिखा रहा था। और उसने क्या किया, फुल थ्रोटल मतलब फुल स्पीड में कर दिया और फिर उड़ाने लग गया। उसकी बैटरी डीसोल्डर हो गई, इतना हाई टेम्परेचर था उसकी बैटरी में। समझ रहे हो, मतलब वो इतना फास्ट बहुत उड़ा रहा था ज्यादा कि ओवर हाँ टेम्परेचर। कि उसकी बैटरी से इतना टेम्परेचर। उसके वायर से इतना करंट पास हुआ कि उसके वायर इतने हॉट हो गए कि वो डिसोल्डर हो गई। और वो अप टू 500 डिग्री सेल्सियस जाके आया था वो टेम्परेचर। तो आप समझ सकते हो कि मतलब वो किस लेवल पे उड़ा रहा होगा। हम्म, मैं भी गया था, मैंने भी अपने 2 ड्रोन क्रैश किए। हम्म, फिर मैंने इंडिया की तरफ से नहीं उड़ाया, मैंने मेडागास्कर कंट्री है जो है काफी पुअर कंट्री है बट काफी अच्छी कंट्री है, तो उसकी तरफ से ड्रोन उड़ाया। अब तुम लोग ये मत बोलना इंडिया की तरफ से, मैंने इंडिया की तरफ से भी उड़ाया लेकिन उन लोगों की तरफ से भी उड़ाया, क्योंकि उन लोगों की तरफ से कोई पायलट नहीं आया था, तो किसी को उड़ाना था तो बस हेल्प वही। करी थी बेसिकली। हाँ। तो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे सोलोप्रेन्योरशिप क्या है कि लाइक एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती है। तो हम्म, उसी पे है कि व्हाट आर द की क्वालिटीज और हैबिट्स दैट हेल्प यू सक्सीड एज अ सोलोप्रेन्योर इन सच अ चैलेंजिंग फील्ड। बहुत सारी चीजें हैं बताने को, तो बताऊंगा तो खत्म नहीं होगी। एक दो भैया जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे। सबसे पहले तो मोटिवेशन ही होता है, कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि तुम्हें कुछ करना है। अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम भटक जाते हो चीजों से कि ये कर लूं, वो डीएसए कर रहे हैं मैं भी डीएसए कर लूं, या कि मेरा रूम पार्टनर ही था वो भी डीएसए करने वाला था, मतलब डीएसए करने वालों में था, क्योंकि वो सीएससी तो करेगा, ऑब्वियसली डीएसए करेगा। बट उसके कुछ समझ नहीं आता था डीएसए का। अब वो देखेगा तो ठीक है, छोड़ो, किसको दिखाना मत। ठीक है, वो डीएसए के लगा रहता, तो मेरे को बोलता था तू भी डीएसए कर ले। फिर हमारा एक दोस्त था, उसका नाम है चैट जीपीटी। तो उसको हम कुछ भी बोलते हैं वो स्टार्ट कर देता है, मतलब उस पे बोलना। जैसे कि मैंने बोला एजुकेशन, तो एजुकेशन में बोलना स्टार्ट कर देगा, तो उसका नाम हमने चैट जीपीटी रख दिया। अब वो उसको मैं रूम बांटने के पास आता था, फिर उसको बोलता था कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, और फिर ऐसे करके उसको डीएसए करवा दिया उसने। ठीक है, बहुत अच्छे से करवाया। लेकिन उसने, मेरे रूम पार्टनर ने लास्ट ने खुद खुद से किया डीएसए। ठीक है, तो मैं उसको देखता था कि वो डीएसए कर रहा है, तो वो क्यों डीएसए कर रहा था, क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे थे। मैं उसको बोलता था भाई तेरा जो इंटरेस्ट है वो कर, बोल रहा भाई मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं बोल रहा ढूंढ इंटरेस्ट क्या है। तो बस ऐसे ही चल रहा था, सब लोग डीएसए कर रहे हैं तो मैं भी डीएसए कर लूं। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे अपने कॉलेज में, अपने जूनियर्स देखे हैं जो बोलते हैं भैया वो भी डीएसए कर रहा है, तो टेंशन में अभी खुद से डीएसए कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि उनके फिर अंदर भी खुद अब का पीयर मोटिवेशन प्रेशर नहीं हो है, जाता है। बिलीव नहीं है उनके अंदर खुद का कि वो खुद खुद से अगर कुछ स्टार्ट करेंगे तो खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो वही है, मोटिवेशन। दूसरी चीज है कि खुद पे विश्वास करना। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है तो तुम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, और जो थर्ड चीज वो है टीम वर्क। अगर तुमने अपने लाइकली माइंडेड पीपल नहीं ढूंढे तो फिर तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। अकेले कर सकते हो बट तुम्हें बहुत टाइम लग जाता है। क्या है कि अगर तुम अकेले हो और फिर तुम्हारे दोस्त कुछ रंग बिरंगे दोस्त आ गए, तो फिर तुम अपने फील्ड से बिल्कुल भटकने वाले हो। तो सबसे पहली चीज यही होती है कि लाइकली माइंडेड पीपल के साथ रहो तो तुम अपने फील्ड में आगे जा पाओगे। ठीक है, जैसे पढ़ने वाले लोग पढ़ने वाले के साथ ही अच्छे रहते हैं, ना पढ़ने वाले के साथ नहीं जा सकते आगे कहीं पे। तो भाई, तो थर्ड पॉइंट ये था कि लाइकली माइंडेड पीपल ढूंढो, अपने जैसे लोग ढूंढो जो कुछ करना चाहते हो। ठीक है। ठीक है, और क्या था, बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कॉमन क्वालिटीज हैं जो तुम्हें होनी चाहिए। और वो सब तुम, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो वो तुम्हें पता होंगी कि वो क्वालिटीज क्या है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और तुम्हें समझाना आना चाहिए, तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट बोलना आना चाहिए कि तुम बताना क्या चाह रहे हो क्लियरली। कुछ लोग होते हैं जैसे कि अपने कॉलेज में स्टार्ट हो गया है बहुत दिनों से, लास्ट ईयर से देख रहा, ये प्रेजेंटेशन वगैरह देने आते हैं,
और फिर ये कुछ भी बोलते हैं। इनको खुद नहीं पता होता कि ये क्या है, बट वो कुछ भी बोलते हैं। और कुछ लोग तो रीड ऐसे होते करते हैं, रहते। हाँ कुछ लोग ऐसे प्रॉपरली बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, बल्कि वो है भी नहीं और उनको पता भी नहीं कि ऐसे होता कैसे है, बट वो उसे पूरा अड़े रहते हैं बिना कुछ समझे, मतलब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं हर कुछ भी। तो वैसा तो नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं जो कुछ करना चाहता है उसको पता होती है कि क्या क्या है, तो वो होनी चाहिए। और बाकी तो सोशल अवेयरनेस। हाँ तो मेरे ये साथ जैसे टीम वर्क में, हाँ मतलब आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग लैग करते हैं टीम वर्क में, मतलब बैठती नहीं है, जमती नहीं है, किसी के साथ वाइब मैच नहीं होती है। तो मतलब हर कोई अपने लीडर बनना चाहता है और एक दूसरे से compete करने लग जाते हैं कभी कभार टीम मेंबर्स, अगर बंदी नहीं है तो। कभी कभार नहीं। हाउ टू मैनेज इफ यू आर अ लीडर, लाइक कैसे मैनेज करें फिर एक टीम को? अगर हम लीडर हैं और सबसे पहले तो अगर हम लीडर है तो हमें दिखाना होता है कि हम लीडर हैं। अगर हम लीडर हैं और फिर हम कुछ बोल नहीं रहे तो फिर वो लीडर वाली कोई बात नहीं रहती। अगर हम लीडर है तो फिर ऐसा होना चाहिए कि हर कोई अपनी बात सुन रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा है तो सबको सुनना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती उनके गले पे कुछ रख के फिर बुलवा रहा हूँ, ऐसा नहीं। उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि जो लीडर है उसको कुछ ऐसा है कि जो उनमें नहीं है, जो उनको उनको सीखना है, उनको बनना है लीडर जैसा, लेकिन वो लीडर नहीं है। क्योंकि लीडर यही डिफरेंशिएट करता है लीडर को कि जो बाकी सब में नहीं है, जो बाकी सबको हैंडल कर पा रहा है, क्योंकि उन सब में वो चीज की कमी है जो लीडर में है। अच्छा ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा इजी शब्दों में बताता हूँ। अगर मतलब कि तू बोल रही कि होता एक है कभी लीडर। कभार, मतलब जैसे टीम वर्क में कोई बहुत बड़ा काम दिया है किसी चीज को मैनेज करने के लिए, और टीम वर्क ही नहीं रहेगा तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ में काम करते बिल्कुल। तो सब अच्छे से रहता, बट किसी को कुछ तो पसंद है, कोई एग्री नहीं कर रहा है, वो मेजोरिटी वाली बात रिस्पॉन्सिबिलिटी आ भी, जाती है फिर। हाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीम लीडर की है कि किस तरीके से काम किस किस के बीच में बांटना है। अगर वो नहीं बांट रहा है तो फिर या तो टीम लीडर सही नहीं है, तो वही। और अगर वो टीम लीडर, अगर ऐसा भी होता है कि जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को किसी को कोई काम देना है तो मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ कि जानबूझ के किसी को जबरदस्ती ज्यादा काम देता हूँ, क्योंकि वो कर रहा नहीं होता है तो मैं कुछ जानबूझ के देता हूँ। तो ऐसा भी नहीं होता कि हर बार टीम में लीडर ही गलत होता है। ठीक है। लर्निंग्स के लिए भी करना हाँ पड़ता है। लेकिन बात वही होती है कि लीडर कौन है। मेरा जैसे वो एक्सपीरियंस डि- इंसान ही बने तो अच्छा है। हाँ वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कि शेर होता है, उसको बताना ही नहीं पड़ता ना जंगल में कि वो शेर है, वो राजा है। उसको दिखाना, एक बार दिखाना होता है, फिर वो सब समझ जाते हैं कि कौन क्या है। तो ऐसे खुद को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि तुम लीडर क्यों हो, क्यों तुम मतलब क्रिटिकल डिसीजंस, क्रिटिकल मोमेंट्स पे डिसीजन लेना। ऐसे बहुत सारे मतलब क्वालिटीज है जो एक लीडर में होती हैं। और नॉर्मल लोग सोचते हैं सब कुछ आसान होता है, बट जब बारी आती है वो सब करने की तो वो सब कहीं पे होता है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जब लीडर उस टाइम पे दिखाता है कि वो लीडर क्यों है, वही चीज डिफरेंशिएट करती है एक लीडर को। भैया आप बोल रहे थे कि इंटरेस्ट लोगों को पता नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, तो उसके लिए हम्म, कैसे पता करें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? उसके लिए हाँ, सबसे अगर पहले भैया तो बहुत सारे इंटरेस्ट हो तो। बहुत सारे इंटरेस्ट हो तो सबको एक बार लिखो ना, और फिर हर फील्ड ऐसा कि हर वीक, एक एक वीक उन इंटरेस्ट को अलॉट करो। ठीक है। और उसके बारे में जो कुछ है वो सब कुछ रिसर्च करो। जैसे मान ले मैंने इंटरेस्ट लिखे कि मेरा पहला इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का, दूसरा मैंने लिख दिया बुक रीडिंग का, तीसरा मैंने फिल्म मेकिंग का। और ऐसे मैंने 3 इंटरेस्ट लिख दिए। ठीक है, अब मैंने एक मंथ लिया और उसमें 3 वीक इसको लोड कर दिए। एक एक वीक, फर्स्ट वीक के, सेकंड वीक के, थर्ड वीक के। तो मैं फर्स्ट वीक स्टार्ट करूंगा फिल्म मेकिंग, और मेरे से हो नहीं रहा, मैं मतलब सब कुछ ले लिया, मतलब महंगा कैमरा किराए पे लेके आया हूँ, फिर उठा के बैठा, फिर एडिटिंग करने के लिए एडिटिंग सीख रहा हूँ, फिर उसमें भी माथा पकड़ के बैठ गया कि एडिटिंग भी बस का नहीं है, ऐसे ऐसे करके तो मेरे को पता लग जाएगा कि फिल्म मेकिंग मेरे बस का नहीं है। बस ठीक है। करनी है। हाँ तो हाँ। वो कैंसिल आउट हो गया। सेकंड ऑप्शन फिर मैं आता हूँ बुक रीडिंग में। उसमें पढ़ने बैठा, फिर मैं बोर हो जा रहा, फिर मेरी इंटरेस्ट की बुक नहीं मिल रही, ऐसा करके। और मेरे को मजा आ रहा एनीमे वाली बुक्स पढ़ने में, ऐसे बुक्स पढ़ने में।
तो उससे भी दिख जाता है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। फिर थर्ड, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में आता हूँ तो उसमें आके फिर मैं स्टार्ट करता हूँ सीखना चीजें, और जैसे कि मेरा इंटरेस्ट उसमें दिखा मेरे को कि हाँ मेरे मन कर रहा है कि मैं और इसमें जानूँ और एक्सप्लोर करूँ, तो फिर मैं उस फील्ड को एक अलग साइड में निकाल दूंगा। फिर अगली बार मैं फिर से पूरी इंटरेस्ट लिखूंगा, और इसी तरीके से मैं ढूंढता रहूंगा जब तक कि प्राइम इंटरेस्ट ना मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स मिला, फिर सेकंड में मान लो मेरे को एरोस्पेस मिल गया, फिर इन दोनों में मैं देखूंगा, अब दोनों में इंटरेस्ट है तो फिर दोनों को मिक्स कौन सा फील्ड होता है उस पर एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे हम खुद को एक तरीके से एक ब्रॉड वे से एक नैरो वे में नैरो। ला सकते हैं। तो वो काफी अच्छा ऑप्शन होता है, मेरे पे अच्छा लगा था ये तरीका, मैंने कहीं पढ़ा था कि इस तरीके से हमें करना चाहिए। से एक बुक है अंकुर वारिको की टू एपिक शिट, उसमें भी हम्म, था कि उनके भी मतलब वो पहले पीएचडी से ड्रॉप आउट हो गए थे, उनको भी जेई करना था, नहीं हुआ। वो भी बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, ऐसा होता था कि वो ट्वेंटीज में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर थर्टीज में भी फेल हो रहे हैं, फोर्टीज में भी फेल हो रहे हैं, फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं और अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, पैशन ढूंढ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी जर्नी से भी पता चल रहा था कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो आप ट्राई या करते जाओ, सक्सेस तो भी और कभी भी मिल सर, सकती है। देखता हूँ मैं कॉलेज में कि हर किसी को पैसे कमाने हैं, बेटिंग वाले एप्स पे लगा रहे हैं। अरे तो मतलब तुम लोग अभी ट्वेंटीज में हो, एटलीस्ट ऐसा टारगेट करो कि तुम अभी जो 5-10 रुपए कमा रहे हो, लाइक माने कि कोई 5,000 भी कमा रहे हो, 10,000 भी कमा रहे हो, बट तुम खुद को इस लाइक प्रिपेयर करो कि तुम लोग जब अपने 25 या 30 की एज में पहुंचो तो तुम एक फिक्स इनकम कमा रहे हो। समझ रहे हो, ये तो वेरिएबल इनकम है, कभी भी एप्लीकेशन बंद हुआ सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक फिक्स इनकम तो चाहिए होगी ना। तो खुद को इस लाइक प्रिपेयर करो कि तुम लोग अपने जब 25 या 30 की एज में पहुंचो तो तुम एक फिक्स इनकम कमा रहे हो, ताकि तुम अपने घर चला सको। वरना हम्म। किसी दिन यूट्यूब बंद हो गया तो सबके घर बंद हो जाएंगे। तो भैया बस। जैसे आपने बोला कि लोगों को इंटरेस्ट पता चल गया, तो अब हम्म, क्या है कि व्हाट रोल डू यू थिंक एकेडमिक और स्टूडेंट क्लब लाइक एनिमा प्ले इन फोस्टरिंग हम्म। innovation and entrepreneurial in technical fields? एक बार फिर से रिपीट करना। What role do you think academic and student clubs like Anima play in हम्म, fostering innovation and entrepreneurial in technical fields? अब इस पॉइंट पे अगर मैं बोलना चाहूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं सही तरीके से करना चाहूँ तो कुछ ऐसा है कि क्लब्स कुछ नहीं कर सकते जब तक कि मेरा खुद का मन नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है। ठीक है, अगर मेरा मन नहीं है और मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है। आई और आई फील ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग हम्म, इनिशियली भीड़ के साथ जाते हैं कि हाँ चलो जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो फिर हम्म। वो निकल जाते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट होता है बट अकेडमिक हो गया, उस सपोर्ट नहीं मिलता उधर से तो छोड़ देते हैं। सेकंड, फोकस हट जाना। बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण वो फोकस नहीं कर पाते इस चीज पे। तो वो भी है एक रीजन। अपने कॉलेज में बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ जो ऐसा हो चुका है उनके साथ, जिन्होंने इस रीजन से इस फील्ड को एक्सप्लोर करने से छोड़ दिया कि प्लेसमेंट लेना है तो डीएसए कर लेते हैं, या फिर और भी बहुत सारे रीजन हैं भाई। जैसे भैया आपने और बताया। बाकी एनिमा क्लब ऐसा नहीं है कि क्लब से सब कुछ करते हैं। सबसे पहला तो इंटरेस्ट होता है, खुद का इंटरेस्ट कि मेरा इंटरेस्ट है तो मैं सीखूंगा। अगर सामने से कोई जैसे कि अपने स्कूल वाले अपने सामने इतनी सारी किताबें डालते हैं, हम खुद से कब पढ़ते हैं? जब एग्ज़ाम नहीं होता है। पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक नहीं पढ़ेंगे। बात वही है। और दूसरी चीज यही है कि कैसे ये स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब क्लब्स वगैरह के अंदर। तो बात ये है कि अगर क्लब्स हम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें वहाँ पे डायरेक्ट वो चीज़ें मिल जाती है जो हम अकेले नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे कि अब मैं अकेला ड्रोन बनाना स्टार्ट करूंगा तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अगर हम किसी क्लब में होते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो टीम होती है जिसमें हर किसी को कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। ऐसा नहीं होता कि सब डम बैठे हैं। तुम्हारे सीनियर्स होंगे तो उनको नॉलेज होगा, ऐसा वाला। तो तुम्हें एक नॉलेज का फील्ड मिल जाता है, या फिर एक लाइब्रेरी मिल जाती है जहाँ से तुम्हें सीखने ही मिलेगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि हर किसी को एक क्लब में होना चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, ताकि तुम्हें कहीं ना कुछ नॉलेज मिलता रहे। अगर कोई तुमसे पूछे भी तो कि तुमने अपनी इंजीनियरिंग में क्या किया तो तुम कुछ तो बोल पाओ।
क्योंकि मेरे को पता है डीएसए के अलावा अगर कोई डीएसए कर रहा है तो उसके अलावा उसको एकेडमिक्स का कुछ नहीं आता होगा। किसी को फूरियर सीरीज किसी से मतलब नहीं है अनलेस वो उसके प्रॉपर कोर में नहीं है। नहीं, क्योंकि मैथ पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। बस थोड़ा बहुत काम में आता है तो उसको याद रखते हैं, बाकी पढ़ते जाते हैं। एग्जाम भी एक दिन पहले पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, ये सब थोड़ी होता है। नहीं, इंटरेस्ट होता है वो करता है, बट लगभग लोग ये करते हैं, मैं खुद भी यही करता हूँ। डिलीट कर देना इसको। मोस्टली लोग तो भैया एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं। मैं 1 घंटे पहले पढ़ता हूँ, बट ठीक है। 1 घंटे पहले आप प्रो हाँ हैं। अरे सब कुछ खत्म रहता है, इतना टफ नहीं रहता। और मैं वैसे भी 16x पे अगर वीडियो देखनी है तो 16x पे देखता हूँ, क्योंकि हाँ उसके लिए एक्सटेंशन आता है, मोजिला के अंदर एक्सटेंशन है, तो उसमें 16x पे डाल, आवाज आएगी नहीं, वो वीडियो पे फटाक फटाक से सब कुछ खत्म कर देगा। तो समझते कैसे हैं आप? वो समझा रहे हैं ना, मतलब हाँ। मेरे अंदर एक चीज अच्छी है कि मैं देख के चीजों को समझ लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी स्ट्रक्चर को देखता हूँ, कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, मेरे को ये पता लग जाता है कि मैन्युफैक्चर कैसे किया है। क्योंकि मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही है कि मैं 3D में बहुत इजीली सोच पाता हूँ, इसलिए मैं 3D मॉडलिंग में थोड़ा अच्छा हूँ। आपका तो आपका इमेजिनेशन इंटरेस्ट है अच्छी वहाँ है। पे। हाँ, तो जैसे कि मैं अगर कोई मॉडल ही बनाना होता है 3D के अंदर, तो मैं कब कौन सा बटन क्लिक करूंगा, कब क्या करूंगा, वो पूरा प्रोसेस मेरे दिमाग में एक रेडी हो जाता है, और मैं जैसे मॉडल बनाने बैठता हूँ तो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है। अभी हमने कंपटीशन किया था एक 3D मॉडलिंग का, हम्म। तो उसमें जो बेस्ट मॉडल था, वो जिस बच्चे ने बनाया था, वो मेरे पास आके बोलता है, भैया इसमें मैंने 3 घंटे लगाए हैं ऐसे ऐसे। वो मेरे पास 2 मिनट बैठा और मैंने उसको पूरा मॉडल 2 मिनट में बना के दिया। कि मैं बोला तूने जो किया वो कुछ नहीं है, और अच्छे से मेहनत कर। वो मेरी बात सुन नहीं रहा था, तो मैंने बोला देख, इतना सिंपल था। तो भाई मतलब हाँ, थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी है बस, वो थोड़ा सा मेरा अच्छा है। बाकी क्योंकि हाँ बताता ये क्यों अच्छा है, एडवांस के कारण। मैंने जेई के टाइम पे मैन मैन पे फोकस नहीं किया था, मैंने सिर्फ एडवांस प्रिपेयर किया था। तो ऐसा था कि मैं सिर्फ एडवांस के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, और वो भी हवा में। मैथ के क्वेश्चन पेपर पे करता था, बाकी क्वेश्चन हवा में करता था। ठीक है। हाँ, ये मेरा एक गुड कैपेबिलिटी था। और मेरे को मेन के क्वेश्चंस नहीं आते, मेरे मेन में 94% थे, लेकिन एडवांस मेरा बहुत अच्छा गया था। मतलब मेरे को क्रिटिकल क्वेश्चन पसंद थे, जैसे मेरी क्लास में मेरे टीचर्स कुछ क्वेश्चन पूछते थे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते थे उसका आंसर नहीं आता था, लेकिन जो ऐसा क्वेश्चन होता था कि पूरी क्लास को नहीं आ रहा, वो मेरे को आ रहा है। ठीक है। जैसे कि एक क्रिटिकल क्वेश्चन ऐसा था कि एक बोट है, उसमें बोट के अंदर जगह है 20 लोगों को बैठने की, उससे एक पत्ता भी ऊपर बैठा तो वो डूब जाएगी। ठीक है। लाइक एक धागा भी उसमें गिरा तो वो डूब जाएगी। अब उसमें 30 लोग बैठे हैं, वो कैसे पार करेंगे, मतलब एक शोर से दूसरे शोर पे। तो ये क्वेश्चन था। तो बताओ अगर तुम लोग दोनों थिंक कर सको तो। एक रिवर पार करनी थी। हाँ, रिवर पार करनी है, लेकिन उस बोट में 30 पीपल हैं, लेकिन वो बोट बियर कर हाँ। सकती है 20 पीपल का वेट। तो वो हम्म। कैसे उस रिवर को क्रॉस करेंगे। ऐसा मत बोलना कि ये पहले 10 लोग को छोड़ के आ गया, ऐसा ऐसा वाला नहीं है। वो वन टाइम जर्नी है, तो कैसे करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ये ऐसा था कि ऐसा भी नहीं कि चैप्टर पढ़ाते टाइम पूछा था, ऐसा फाइनल रिव्यू चल रहे थे तो तब पूछा था। तो मतलब ये किसी भी चैप्टर का हो सकता है एडवांस के अंदर। नहीं, आप बता दो। नहीं या यार थोड़ा थिंक हिंट दे करो ना दो। थोड़ा सा थिंक करो। आप तो हाँ मेरी क्लास में बता रहे हो, मेरी क्लास में क्या बोल रहे लोग कि 1 बाय 1 स्टैक कर देंगे पीपल्स को, तो वो एक पॉइंट पे फोर्स रहेगा, तो उस तरीके से निकाल के ले जाएंगे, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं सेंटर था। ऑफ मास मेंटेन करके। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। इसका सिंपल सा आंसर था सरफेस एरिया इंक्रीज करके। जो पीपल हैं वो बोट के चारों तरफ से होल्ड करेंगे और वो पानी के अंदर तैरने लग जाएंगे, तो बोट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उसकी लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे वाला था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये मैंने आंसर किया था। मेरी तो फिजिक्स वैसे भी खराब है भैया, मैं सोच ही नहीं पाता। हाँ ठीक है, ओके हाँ, तो मैं ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन सोच लेता था, बट बेसिक भैया, क्वेश्चन लेकिन नहीं होते थे। अगर रिवर ज्यादा बड़ी होती तो फिर कैसे जाते? थक नहीं जाते लोग? हाँ, तो तभी तो मैंने बोला पीपल चेंज होते हैं।
क्योंकि तेरे को सिर्फ सर्विस एरिया बढ़ाना है ताकि उसकी लोड कैपेसिटी बढ़ सके। जैसे 5 लोग नीचे लटकेंगे तो 25 लोग की कैपेसिटी हो जाएगी, तो वो 5 लोग एक्सचेंज होते रहेंगे ना, अगर मतलब अच्छा। मोशन ऐसे होता बड़ा रहेगा रिवर काइंड हो। ऑफ। हाँ जी, एडवांस यही चीजों पे तो फोकस करता है। अब ये फीजिबल भी है ना, इसके अलावा कोई फीजिबल ऑप्शन नहीं है ना तेरे पास, सबसे फीजिबल ऑप्शन यही है। तो वही, अब एडवांस में यही होता था कि 3-4 चैप्टर्स घुमा के क्वेश्चन में आते थे। मिला के। क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती थी बस, बट वो चीजें बहुत काफी पीछे रह गई है। हम्म, आजकल एजुकेशन सिस्टम भी मतलब सब कुछ इजी करने लग गए हैं, पहले बहुत चीजें टफ होती थी। अब तो बिल्कुल मतलब बहुत। जेई की परसेंटाइल भी कितनी ज्यादा कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। हम्म, एजुकेशन सिस्टम इजी करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो भैया इसमें गलती बच्चों की है कि एजुकेशन सिस्टम की है? इसमें गलती किसी की नहीं है, ये आने वाली जनरेशन की गलती भी नहीं है, बट बात कुछ ऐसी कि अभी की जनरेशन को अगर हम देखते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग तरीके से खत्म हो चुकी है। क्योंकि इस जनरेशन के जो ऊपर वाली जनरेशन है, जैसे कि जेनजी बोलते हैं लोग खुद को, मतलब हम लोग भी जेनजी हैं सब लोग, बट अभी कुछ जेनजी नए आए हैं। जैसे तुम्हारे फर्स्ट ईयर देख लो, अब फर्स्ट ईयर जो है वो एक तरीके से ऐसे वाले हैं कि जो 9th 10th 11th 12th के अंदर मोबाइल्स उनके हाथ में आ गए थे, और वो उनकी थिंकिंग, जब तक हमारे हाथ में मोबाइल रहता है तब तक हमारी थिंकिंग एक तरीके से डिग्रेड होती रहती है। क्योंकि हम कुछ भी जैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर ओपन कर लिया, कुछ ढूंढना है तो किसी को पूछने के बजाय गूगल कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो थोड़ा थिंकिंग के ऊपर हमारा चेंज ला देता है, फोन कुछ ज्यादा यूज करना। तो जब तुम लोग हो सेकंड ईयर वाले, तो तुम लोग के टाइम पे कम फोन था। अब तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, तुम्हारी फर्स्ट ईयर वाले, उनके पास ज्यादा फोन था, तो वो ज्यादा कम सोच पा रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनके हिसाब से पेपर बनेगा ना। ज्यादा टफ पेपर बना दिया तो उनसे तो इक्वेशन नहीं होने वाला है। तो ये गलती किसी की नहीं है, पर ये ऐसे तो फिर बस। कोई इनोवेटिव थिंक करेगा ही नहीं, हाँ, तो वही तो हो रहा है। मैं जैसे क्रिएटिविटी कि भी नहीं आएगी। हाँ, हाँ, अभी मैं ट्रेवल करके आ रहा हूँ, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, सब फोन में लगे हुए हैं। मतलब मैं किसी से पूछता भी हूँ तो कोई सही से बात भी नहीं कर रहा। जैसे कि मैं पहले बात करता तो मतलब हर बंदा बात करता था, ऐसा लगता था कि हाँ इसके पास कुछ सीखने को है, और वो सब खत्म हो गया है। दूसरी बात, स्कूल सिस्टम बहुत खराब लगते हैं मेरे को। जैसे कि अपनी मम्मी पापा देख लो, उन लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहला जो तुम्हें सीखना होता है वो उनसे ही सीखना होता है, कि वो मतलब उन लोगों ने क्या क्या सीखा, एक्सपीरियंस उनसे, और कैसे कौन सा काम कौन सा डिसीजन कैसे लेते हैं, कौन सा काम कैसे करते हैं। ये सब हमें वही सिखा सकते हैं सही से, स्कूल्स वाले नहीं सिखाएंगे सही से। स्कूल्स वाले हिस्ट्री पढ़ा देंगे, साइंस पढ़ा देंगे, वही पढ़ा पाएंगे। एक रियल लाइफ में डिसीजन वगैरह कैसे लेते हैं वो प्रॉपरली नहीं बताएंगे। बहुत सारी चीजें जो स्कूल्स में नहीं बताते। तो सबसे पहली चीज तो यही खत्म हो गई कि हम लोग अपने मतलब एंसेस्टर जो है, अपने पेरेंट्स वगैरह हैं, उनसे ही नॉलेज लेना बंद कर दिए हैं सबसे पहली चीज तो। जैसे कि घर पे मैं अभी भी देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे वो सब फोन के लगे रहते हैं पूरे दिन, कोई मतलब नहीं कि कैसे क्या काम करते हैं। जो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना भैया, मुझे लगता है कि हम्म, फोन उनको इसलिए दिया जाता था कि वो पेरेंट्स को परेशान ना करें, और हाँ, पेरेंट्स भी दे देते और हैं खुशी खुशी। पेरेंट्स पे दे देते हैं, तो हाँ, वही तो ये बोल रहा होता है, है। धीरे धीरे बस वही कि पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं सीखा, और अब वो अपने बच्चों को भी कुछ नहीं सिखा रहे हैं, तो इस तरीके से सब कुछ खत्म होते जा रहा है। तो डमनेस आती जा रही है जनता में, चलते फिरते जोम्बी बन रहे हैं। यही देख के लगता है मेरे को तो, बस में बैठ के, मजाक नहीं कर रहा मैं, किसी को कुछ भी पूछो कुछ नहीं पता। क्यूरियोसिटी खत्म हो रही है जानने की। हाँ, बिल्कुल। तो भैया अगले दुख होता है थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन की ओर हाँ, बढ़ते अगला हैं। क्वेश्चन। आपका भी टाइम हम लोग ले रहे हैं, लेट हो गया हाँ, है, ठीक तो है। जस्ट रैप अप कर रहे हैं, बस हो गया। हम्म, आप क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे मेहनत करके आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज में आते हैं। तो लाइक हाउ कैन इंस्टीट्यूट लाइक एनआईटी और ट्रिपल आईटी अगरतला सपोर्ट स्टूडेंट हम्म। बेटर इन परसुइंग cutting edge fields like drone technology and aviation? ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे ये सपोर्ट कर सकते हाँ। हैं, मेनली वही पूछ रहा है। हम्म, तो बात कुछ ऐसी कि सबसे पहले तो अगर कोई इंटरेस्टेड है
अब मान ली मैं अकेला इंटरेस्टेड हूँ मेरी कॉलेज से, और मेरी कॉलेज में सिर्फ CSE ब्रांच है IIIT में, तो अकेले मेरे को तो सपोर्ट करने से रही कॉलेज। तो सबसे पहले तो ये थी लाइकली माइंडेड पीपल। तो अगर तुम लोग अपने जैसे ढूंढ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो अपनी कॉलेज के पास जाओ और उनसे बोलो कि मतलब जब भी तुम्हें सपोर्ट चाहिए होता है, कि अगर तुम कहीं किसी दूसरी कॉलेज में वर्कशॉप हो रहा है तो तुम अगर वहां जा रहे हो तो अपनी कॉलेज को बोलो कि मुझे वहां जाना है, तो वो उसमें परमिशन वगैरह दे और अलाउंस दे अटेंडेंस वगैरह में। वरना मेन प्रॉब्लम ये आती है अपनी कॉलेज में, अटेंडेंस इश्यू। सबसे पहले तो मानते इधर ऑफिस ऑर्डर भी निकला हुआ है, सब कुछ रेडी है, डीन सर मतलब डायरेक्टर सर के साइन है, डीन सर के पास भी एप्लीकेशन पास है, लेकिन फिर भी जब वो टीचर के पास जाता है तो बोलता है मतलब नहीं अलाउ नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो उसको अलाउ करना चाहिए ना, और अटेंडेंस का मतलब होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि क्लास में आएगा तो ही सीखेगा। बहुत सारे टीचर्स अपने को हमारे प्रोफेसर्स भी बोलते हैं कि मतलब ऐसे कोई भी कॉलेज एक्टिविटी के लिए वो अटेंडेंस नहीं देंगे, चाहे तुम इंटर एनआईटी भी क्यों ना चले जाओ तो भी नहीं देंगे। वही, नॉर्मल क्लास में भी अटेंडेंस नहीं क्योंकि देते हैं। वो उनके दिमाग में वही भरा हुआ है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ आपको पता है भाई IISc बैंगलोर है, वहाँ पे जीरो अटेंडेंस हाँ है, जीरो अटेंडेंस है। पता है मैं वहाँ गया था। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते भैया। जैसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमने कुछ ना कुछ गलतियाँ की होती है, स्टार्टिंग में की होती है, तो लाइक इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो बैक एंड गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू योरसेल्फ, व्हाट वुड इट बी? नॉट टू वेस्ट टाइम, बस यही। इसके अलावा एग्जाम्पल कहाँ पे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ ऐसा टाइप? सेकेंड ईयर में थोड़ा गेम खेलने लग गया, तो सेकेंड ईयर में कुछ ऐसा था कि मैं ये पूछ रही थी कि एक डिसीजन लेने के लिए मतलब क्या क्या चीजें हमें सोच लेनी चाहिए एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीजन कैन मेक यू और ब्रेक यू। डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अगर हमें देखना चाहिए तो वो यही है कि हमें सबसे पहले उसके ये देखना चाहिए कि अगर हम ये वाला डिसीजन लेंगे तो क्या मतलब आउटकम्स होंगे, और अगर एक्स डिसीजन लेंगे तो क्या आउटकम होंगे, वाई डिसीजन लेंगे तो क्या आउटकम होंगे, और अगर हम दोनों नहीं लेंगे तो क्या आउटकम होंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसे एनालाइज करना होता है एक कंडीशन को, कि अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा, और नहीं कुछ भी नहीं करूँगा तो ये होगा। उसी हिसाब से हमें इवेलुएट करना होता है कि अब बात यह है डिसीजन अगर हम कुछ लेते हैं तो किसी ना किसी को तो डैमेज होता है। अब सबसे कम डैमेज हो और फिर डिसीजन जाए तो बेटर ऑप्शन रहता है। तो उसी चीज को इवेलुएट करना होता है, और वो इवेलुएशन के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। बस भाई कुछ समझ नहीं आया वो। नहीं आ गया भैया, आया समझ, बट वही है कि वो समझ नहीं आता ना कि कैसे हमें कोई भी छोटा डिसीजन भी लेना होता है तो भी हम सोचने लग जाते हैं कि क्या आगे जाके हमें ये इफेक्ट ना करे। जैसे कि कैसा डिसीजन? किस भैया? जैसे कि कैसा डिसीजन, कोई एग्जांपल है? जैसे कि हम लोग बहुत सारे क्लब में हैं ऑलरेडी, मतलब 3-4 क्लब में हैं और बहुत हेक्टिक हो रहा है। जैसे BTC का जब आया था रिक्रूटमेंट, तब मैंने ये सोचा था कि मतलब कहीं ये ज्यादा हेक्टिक ना हो जाए, मतलब BTC में बहुत काम करना था और हमारा जो ब्रांच है उसमें भी हमें अटेंडेंस नहीं मिलती, ऐसे हम बंक नहीं कर सकते हैं और फिर हमें अपनी स्टडीज पे भी फोकस करना है, हमें इंटर्नशिप भी करनी है, तो कहीं ज्यादा हेक्टिक ना हो जाए। तो हमें इसमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक वैसे टाइप का डिसीजन मिल जाता है। तो इसके लिए तो हमें ये देखना होता है ना कि हमारे लिए अटेंडेंस जरूरी है या फिर कुछ सीखना ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे लिए अटेंडेंस ही जरूरी है तो फिर वो तो हम स्कूल में भी दे रहे थे, वहां पे हमने क्या सीखा, फिर हम कॉलेज में क्यों आए? लेकिन भैया यहाँ पे तो ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, हमारे ब्रांच में ऐसा होता है कि मतलब अटेंडेंस आपकी कम होती है 75 से तो सच में रिवार्ड लगा देते हैं। अब उसके लिए तुम्हें गुड रिलेशंस बनाने होते हैं, अपने टीचर से गुड रिलेशन बनाओ और उनको गोली दो, बस यही है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम गुड रिलेशन बना के उनको गोली दे पा रहे हो देन बेस्ट है,
वरना अगर गोली नहीं दे पा रहे तो फिर तुम लोग काम से गोली देनी पड़ती है। हाँ, जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, करता करके एक ना डाले। मुश्किल से ऐसा है कि मैंने एक फुल डे क्लास की है। मैंने कभी और बाकी क्लास नहीं जाता ही जाते। नहीं, कभी नहीं जाता। मैं मुश्किल से मेरे को क्लास में किसी ने देखा होगा। ट्रिपल हाँ आईटी की पर क्लासेस तो आपके कम में ही तो उतनी होती है। क्लास होती ही नहीं है। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं होती है। हमारे बहुत सारे स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, जैसे कि हमारे अरिजीत सर है, वो पूरी क्लासेस लेते हैं, एक भी क्लास नहीं छोड़ते। ऐसी बात नहीं कि नहीं छोड़ लेते, लेकिन उनके साथ अच्छी बना ली तो फिर वो मान जाते हैं। वो हर किसी की नहीं मानते, लेकिन वो सुन लेते हैं। फिर सुमन सर हो गए, क्या बात करोगे, क्लास में लेते हैं ऐसे कैसे? सुमन सर डायरेक्ट डिबार सुमन देते हैं सर तो ना। लेते हैं। हाँ, तो फिर उनकी क्लास हमारी में नहीं कहने का एक लेते आध हैं। मतलब टीचर तो चलता है, बट हमारे तो सारे टीचर ऐसे होते हैं, आपके तो फिर भी भैया, नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपकी क्लासेस कम होती है और जो आप क्लासेस बोल रहे हैं ना वो भी कैंसिल हो जाती है। जैसे सुमन देव सर का है, अरे Right. मेरा बगल का जो इतनी रूममेट है कैंसिल, वो ना बट हाँ। हार्डली सुमन देवी क्लास में हफ्ते में 1 या 2 बार जाता होगा, और हम रोज हाँ, रोज तो सुबह उठ के जाते हैं 9 बजे। उसको दिक्कत नहीं है क्या कभी अभी तक तो एग्जाम्स टाइम में? अभी तो नहीं हुई। तो ठीक है, और आप जो बोल रहे हैं ना बोलना पड़ेगा सर को। और वो सर से उसकी अच्छी बनती हुई है, अजीत दत्ता सर से है, हम्म। तो वो भी एक आध मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कुछ बोल रहे थे? आप बोल रहे थे कुछ। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल तो आगे बढ़ते हुए लास्ट रहा। हाँ, what are your future goals and aspiration for both you and your startups? स्टार्टअप वाला पार्ट थोड़ा हमने जान ही लिया है, लाइक आप अपने बारे में। मेरे फ्यूचर गोल कुछ ऐसे हैं कि मैं एक बड़े लेवल पे चेंज लेके आऊँ। पहला तो यही है। अब वो चेंज कैसे भी हो सकता है, चाहे वो ड्रोन्स के थ्रू हो सिर्फ या इंडिया के फिर लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए? पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऐसे देखता हूँ कि इंडिया ही अकेला नहीं है जो हर चीज प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो सबसे पहला तो यही है कि मैं ग्लोबल लेवल पे चेंज लाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा मेन गोल यही है। इसके अलावा उस चैलेंज मतलब उस चेंज को लाने के लिए मेरे सामने जो जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे ओवरकम करना है वो मैं धीरे धीरे करता रहता हूँ। कि जो जो मेरे को सीखने की कमी होती है, ऐसा है मैं डिपेंड नहीं करता कि अ, ये दोस्त है इससे करवा लेता हूँ, ऐसा नहीं। अगर कुछ सीखना है तो उसको सीख के खत्म करता हूँ। तो मेरा फ्यूचर गोल ऐसा कोई फिक्स ओरिएंटेड नहीं है कि मेरे को यहाँ पे जाके रुक जाना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को होता है कि जॉब मिल जाए फिर हम सेटल डाउन हो जाएंगे। ऐसा वाला कोई गोल नहीं है मेरा, बट एक ही गोल है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि पूरी दुनिया के कुछ काम आए, बस वही। बहुत अच्छी सोच है। तो इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। लाइक लास्टली, व्हाट आर योर एडवाइसेस टू ऑल ऑफ अस, योर जूनियर्स? एडवाइस कुछ ऐसी है कि जरूरी नहीं कि तुम डीएसए करो। सबसे पहली DSA एडवाइस is the यही है। enemy. हाँ जी, जरूरी नहीं तुम डीएसए ही करो, तुम्हें जो करना है वो करो। क्योंकि माना कि डीएसए में तुम्हें हाई पेइंग जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन वो कब तक? आज से 5 साल बाद सब खत्म हो जाएगा, तब क्या करोगे? तो खुद के इंटरेस्ट एक्सप्लोर करो, उसमें ज्यादा मजा आता है। ना कि एक हाई पेइंग जॉब और उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, वो करने से ज्यादा मजा आता है एक नॉर्मल मॉडरेट पेइंग जॉब और उसमें तुम्हारे इंटरेस्ट की चीजें हो रही है, वो काम करने में ज्यादा मजा आता है। इतने पैसे को कहाँ रखोगे, क्या कर लोगे? सही बात है, पैसे तो अच्छा यूज पहन करने लोगे, होंगे। अच्छा खा लोगे, अच्छे घर ले लोगे, फिर क्या करोगे? अच्छी गाड़ियां ले लोगे, फिर एक दिन मर जाओगे। सही सब बात है, कुछ लेके थोड़ी जाएंगे। सब छूट हाँ जाएगा। भाई, सब तो यही रह जाएगा। माना कि तुम अच्छे जीवन जी लोगे, बट वो अच्छा जीवन तुम मॉडरेट इनकम के साथ जी रहे हो, लेकिन पूरे जीवन तुम वो काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। वर्थ इट नहीं होगा। हाँ, तो जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है वो चीज एक्सप्लोर करो। ऐसे तुम डीएसए करने लग गए तो फिर कैसे खप चलेगा? पूरी धरती डीएसए करने लग गई तो फिर सही बात है। वही है कि अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना है। हम्म, यही एडवाइस थैंक यू है, भैया बाकी तो फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत इट वाज रियली ग्रेट बहुत अच्छा मीटिंग। लगा आपसे बात करके। एक एक करके बोल लो।
We got to know many things from you. You are such an inspiration for everyone. Thank you for joining us today. Thanks. बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग. लाइक ओवरऑल Critical. हाँ, ओवरऑल इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन. थैंक यू भैया. Thanks. Thank you, Bhaiya.